Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date, I am discuss the component of physical fitness is speed. Speed may be defined as the ability or capacity of an individual to perform a movement of the same pattern at a faster rate. In fact, speed is the ability to move the body as fast as possible, especially in running. However, different sports skills require different types of fast movements and quick reaction. Speed of movement in such is much more than just running speed. It includes the speed of body parts such as the explosive strength of the shot putter's body across the throwing circuits or the speed of a gymnast in hand spring. Most of the sports require speed over short distance such as running between and wickets. In cricket, speed depends on the types of muscles fibers. There are two types muscle fiber: fast twist fibers and slow twist fiber. Fast twist fiber muscles contract rapidly and produce the maximum force, whereas slow twist fiber contract slowly and produce less force. Therefore, fast twist fiber fatigue quickly, whereas slow twist fiber fatigue slowly. Now it can be decided easily whatever an individual is suited to speed related events for events which are related to endurance, because percentage of these fibers in an individual can be measured. Training can enhance speed by reducing the reaction time of the individuals. Most probably, speed is used in every sports except endurance related sports. Endurance related, like a calisthenic, it means long distance running above the 10,000 kilometers. 5 means 10,000 meters, not a किलोमीटर. 10 किलोमीटर से ऊपर की जितनी रेसेस हैं वहाँ एंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है. रोड रनिंग, रोड साइकिलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट, endurance. Endurance is another component of physical fitness like speed and strength. It is the ability to sustain an activity. Here also define endurance as the ability to resist fatigue. In all sports, endurance is directly or indirectly of high importance. It is usually measured by the number of repetitions. For example, the number of sit-ups an individuals can complete in 1 minute is often used to measure the endurance of the abdominal muscles. The types of endurance varies from sports to sports. Basically, there are two types of endurance, that is short-term endurance and long-term endurance. First, I am discuss the short-term endurance. Short-term endurance means छोटी अवधि के लिए आपकी सहन क्षमता क्या होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स वेयरिंग द एक्शन ऑफ मूवमेंट इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इंटेंस, दैट इज हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग एक्सेट्रा. इट मीन छोटी अवधि की सहन क्षमता उन खेलों में प्रयुक्त होती है जिनमें खेल क्रिया कम अवधि की होती है तथा क्रिया की गतियाँ बहुत तीव्र होती हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती मीन्स रेसलिंग. जहाँ कम समय में फास्टर रेट पे वर्क किया जाए वहाँ शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है. देन लॉन्ग टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट wherein the action of movement is for a longer duration and it also intense, that is in long distance races, road cycling, cross country races, etc. Endurance is not only needed in sports but also needed from a common individual in his her day to day life. Endurance can be increased by continuous training methods, interval training methods and repetition methods. मीन्स इन थ्री टाइप्स ऑफ एथलेटिक्स मेथड्स जो है जिसमें के थ्रू हम लॉन्ग टर्म एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर फिजिकल फिटनेस. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. एन इंडिविजुअल हु हैज़ proper flexibility can perform major work very easily. Such people seem to be attractive. Usually they tend to have good personality. Flexibility is not only a significant factor in sports but also quickly significant for an individual in his her daily life.
The range of movement varies significantly from joint to joint but depends on the structures of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissues. Flexibility is related to genetic factor as well as physical activity programs. Usually tight joints prevents smooth and efficient movement. Flexibility training prevents muscular injuries. Maintaining flexibility through the life, especially in back and leg muscles, may help in preventing back problems. Flexibility is helpful in learning various skills easily, such as backstroke in swimming. These skills can be learned easily if an individual has some ample flexibility. Flexibility is of two types: passive flexibility and active flexibility. First, discuss the passive flexibility. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसको हम अक्रिय लचक बोलते हैं. इट मीन्स इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी में जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियाँ की जा सकती हैं. मीन्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने जो है स्पीड को या गति को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं. मीन्स किसी के थ्रू जैसे क्या करते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं जो क्या करें, हमारी बॉडी को स्ट्रेच करा ले, तो इसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं. वास्तव में सक्रिय लचक का आधार अक्रिय लचक ही होती है. मीन्स जो बेस होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का वह पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ही होती है. मीन्स किसी की सहायता से एक्सरसाइज करना, ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है. जैसे हैंड्स अगर कहीं मूव नहीं कर रहा है तो दूसरे हैंड से उसको थोड़ा सा पुश कर लें, जिससे पुश किया जा सके या आपको कोई खींचे. इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं. देन है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स सक्रिय लचक. बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गत करने को सक्रिय लचक कहते हैं. मीन्स आपका जैसे शोल्डर मूवमेंट होता है, आपका हैंड मूवमेंट होता है, ये इस टाइप की एक्सरसाइज किसी की सहायता के थ्रू नहीं की जाती, कोई इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए. सक्रिय लचक भी दो प्रकार की होती है. ये टू टाइप्स ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स स्थिर लचक, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स गतिशील लचक. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, एक खिलाड़ी को प्रायः तब स्थिर लचक की आवश्यकता होती है जब वह स्थिर अवस्था में होता है. जैसे डाइविंग, बैठने उठने स्टार्ट, मीन्स कहीं वो सिटिंग कर रहा है, अब एकाएक उठ रहा है या कहीं स्टार्ट ले रहा है, वहाँ इसको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लेयर्स को उस समय आवश्यकता पड़ती है उस टाइम पे जब वह रनिंग मूवमेंट होता है, चल रहा हो या दौड़ रहा हो, मिस मूवमेंट में जब होता है तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है. एक खिलाड़ी एक समान व्यक्ति के लिए दोनों प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, मिस चाहे वो खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, चाहे कोई जनरल पीपल हो, सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से लचक में कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या अपने पैर को फैलाते हैं, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं, मीन्स जिसमें आपको खिंचाव महसूस होता है, उस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. जॉगिंग जो है करना चाहिए, रोप स्कीपिंग और थोड़ा सा बॉडी को सूर्य नमस्कार स्पेशली करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. इसमें लास्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है इसको 1980 में इसको शारीरिक मीन्स फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के 5 जो पार्ट्स हैं उसमें इंक्लूड किया गया, जिसको पहला स्पीड, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा एंडोरेंस, फिर स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद एजिलिटी थी, जिसको एजिलिटी मीन्स होता है लचीलापन या फुर्तीलापन. लेकिन इसके बाद एजिलिटी के स्थान पर तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रयोग किया जाने लगा. मीन्स 1980 के पहले जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की जगह पे हम एजिलिटी का उपयोग करते थे. नहीं तो 1980 के बाद हम लोगों ने क्या किया, एजिलिटी की जगह पे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को क्या किया, हम लोगों ने रखना स्टार्ट किया है. इसके लिए इसको चेंज क्यों किया गया है, इसका एक कारण है कि एजिलिटी की परिभाषा तथा प्रकृति स्पष्ट नहीं थी. मीन्स एजिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे लोग अच्छे तरीके से, इसीलिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को उस पर रखा गया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करती है. मीन्स जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है वो सिस्टम जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स केंद्रीय स्नायु संस्थान है उस पर निर्भर करती है. तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती हैं कि वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं गतिक्रियाएँ सुचारू तथा प्रभावी ढंग से कर सके.
हमारा गति वाले का कार्य करने का गुण अधिकतर तालमेल संबंधी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। हमारी स्थिरता, लय, सही क्रिया करना आदि इन्हीं योग्यताओं पर निर्भर है। इस प्रकार की खेल के कौशल को सीखने की गति तथा उसकी स्थिरता भी इन्हीं योग्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार की योग्यताएं यह भी निर्धारित करती हैं कि कोई खिलाड़ी किस सीमा तक किसी खेल में प्रवीणता प्राप्त करता है। ये योग्यताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे बैलेंस एबिलिटी, रैदमिक एबिलिटीज़, अडेप्शन एबिलिटीज़, रिएक्शन एबिलिटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो एबिलिटीज़ होती हैं जिम्नास्टिक व डाइविंग में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इस प्रकार की योग्यताओं को हम सामान्य व विशिष्ट व्यायामों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो है, कोई भी कला कौशल स्किल सीखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया सही ढंग से हो। साथ ही साथ हमें अपने मूवमेंट के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। यदि हम सारी चीज़ों को ध्यान रखें, मीन्स माइंड करें, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।